Hello guys, welcome to my YouTube channel. Your next resume machine learning project, forest cover type prediction. Guys, first let me show you the output. I have couple of features related to forest. मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊंगा, but first let me show you the output. As you can see, this is the output for our first forest, aspen. This is the type of forest and this is the image of that type of forest. So what you will learn from this project? You will learn forests types के जंगलात के कितने टाइप्स होते हैं और मशीन लर्निंग में जंगलात डेटा टाइप्स पे आप किस तरह जंगलात की प्रोटेक्शन करते हो. डीप रिसर्च ऑन एमएल प्रोजेक्ट लाइक दिस वन. आपको मैं आज बताऊंगा कि आपको अगर डेटा सेट दिया जाता है आप उस पर किस तरह रिसर्च करते हो. मल्टी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम in this video, and from this end-to-end project I'll teach you multi classification problem because in output variable we have multiple forests. Okay, training multiple models. I'll teach you how to train multiple models and we will be selecting a best model, selecting best model, and we will be creating web app using Streamlit. So आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कोडिंग का एक नया तरीका सिखाऊंगा. ठीक है, स्ट्रीमलेट की मदद से जब आप एक वेब एप्लीकेशन बनाते हो वहाँ पे आप इमेज और जो आउटपुट आपका आता है, जो इमेज होता है और उसके साथ जो उस आउटपुट वेरिएबल का जो नेम होता है, लाइक इन आर केस फॉरेस्ट, वो आप किस तरह करते हो एक डिफरेंट वे से मैं आप लोगों को पाइथन के अंदर डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी भी सिखाऊंगा. मैं आप लोगों को सिखाऊंगा हाउ टू यूज HTML विद इन स्ट्रीमलेट ऐप बिकॉज वी आर यूजिंग वेब ऐप पाइथन लाइब्रेरी स्ट्रीमलेट. I will also teach you how you can implement HTML and CSS within the same Streamlit app in single line of code. उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरह ऐप कोड पे फोकस करते हो. उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा मॉडल इंटीग्रेशन इनटू ऐप and some new way of coding in Python. Okay, so let me show you some other output. I have couple of other output. अभी के लिए just forget what I am doing, just focus on the output. We will see all this thing. We will do deep research. As you can see, I have created a deep research. We will also cover this one. So just let me show you. Currently we have this. Now I have another types, another features for another forest. I don't know what type of forest it will be, but the moment I enter, my application says that this is lodge pool pine trees forest. तो ये एक दूसरा जंगल आता है. So our web app working quite good. Let me show you some other. Just let me copy all these feature values except the last one. Okay. And again let me select all and control V and enter. So this time there is an error, maybe just let me select all, paste, enter. Okay, the error is I've selected the last comma, so let me remove this one. Just copy. अभी के लिए भूल जाओ, मैं ये सारी चीज़ें बड़े डिटेल के साथ आप लोगों को बताऊंगा. Just let me select all, paste, enter. Okay, so this is, as you can see, spruce fir forest. ये एक तीसरा टाइप है फॉरेस्ट का. So हमारा वेब ऐप working quite good. Now guys, before moving forward, what you need, create now Jupyter notebook file. The data set I will share with you. जो डेटा सेट मैं यूज़ करूँगा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आप लोग वही डेटा सेट यूज़ कर लेना. First of all, just let me import necessary libraries and data set. Then before implementing this end-to-end project, what we can do, we will do research on this data set. Okay, so for now just I need pandas library, okay, as PD. I also need numpy as np. Now let me bring the data set. So pd.read csv. I have a data by the name of train related to forest. I'll explain in detail. So this is the data. Let me show you first 3 rows. This is the data. Now इस डेटा में हमारे पास बहुत सारे फीचर्स हैं like ID, elevation, aspect, slope. This is quite big data. Okay. In case of columns, हमारे पास बहुत सारे फीचर्स हैं. And finally we have cover type. Okay. So before moving forward, what we can do, let me show you that what this data set and feature mean. Then we will do the research. Okay. So df dot info method मैं यूज़ करूँगा ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ. ये डेटा सेट जंगलात से रिलेटेड है. इसमें टोटल 7 फॉरेस्ट के फीचर्स है. ओके, हर फॉरेस्ट की आईडी
उसका एलिवेशन, उसका एस्पेक्ट, उसका स्लोप. सो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स. नाउ व्हाट these columns or feature mean. Okay, so let's explore it. So let me show you right here. So this is the forest cover type prediction. We are using machine learning and Python. Okay, so sometime क्या होता है कि आपको एक ऐसा डेटा सेट मिलता है कि अगर आपको एक डेटा सेट दिया जाता है कि इस डेटा सेट के अंदर आप मुझे एक ऐसा मशीन लर्निंग मॉडल बना के दो जो मुझे बता सके कि हर फॉरेस्ट या जंगल का जो इनपुट फीचर्स है वो देने के बाद ये बता सके कि दिस इज दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट. ओके, नाउ इसी के लिए आपको आइडिया होना चाहिए फॉरेस्ट का. हमारे पास से हमारे डेटा सेट में टोटल 7 फॉरेस्ट हैं, जंगलात हैं, उनको हम एक्सप्लोर करेंगे. So this data set is about forest cover type prediction data set. This data set is commonly used in machine learning for classification tasks. Here is a detailed breakdown. Okay, so ID is the unique identifier for each instance in the data set. Elevation is the land elevation. Okay, the elevation of the land that is measured in meters. Aspect of the land. ठीक है, पहलू. Slope of the land. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टू हाइड्रोलॉजी, जंगल का वाटर से जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितना है. द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टू द नियरेस्ट सरफेस वाटर दैट इज मेजर्ड इन मीटर्स. वर्टिकल डिस्टेंस टू हाइड्रोलॉजी, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है फॉरेस्ट का पानी से, समुंदर से. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टू रोडवेज, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टू रोडवेज का मतलब ये है कि जो जंगलात के आसपास जो सड़कें हैं उनका जंगल का और सड़कों के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितना है. सो इट्स अगेन मेजर्ड इन मीटर्स. हिल शेड जो पहाड़ी इलाके हैं उनका जो साया है वो चाहे नून के वक्त है, वो 3 PM के वक्त है, वो 9 AM के वक्त है. एज यू कैन सी हिल शेड 9 AM, हिल शेड नून, हिल शेड 3 PM. ये इन लोगों ने क्या किया है कि डिफरेंट टाइम्स पर जो हिल्स की शेड है हर फॉरेस्ट का उनकी डिफरेंट टाइम पे डे मेजर्ड किया है जो कि 0 and 255 यूनिट्स में है. ठीक है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आप लोग स्टडी कर लेना. उसके बाद आपके पास है सॉइल टाइप 1 से लेकर सॉइल टाइप 40. सो टोटल वी हैव 40 फीचर्स. अगेन हर जंगल की जो सॉइल है, हर फॉरेस्ट की सॉइल टाइप, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल. ये बाइनरी इंडिकेटर्स है जो रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिफरेंट सॉइल टाइप्स फॉर ईच फॉरेस्ट. ओके, and finally we have output variable. This is our output variable cover type in which we have 7 numbers यानी 7 categories यानी 7 forest. ओके, जो कि 1 से लेकर 7 तक हैं. The target variable representing the forest cover type value from 1 to 7. इसको मैं डिटेल के साथ आगे बताऊंगा. सो अभी के लिए हम क्या करते हैं कि समझ लेते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है, ये डेटा सेट हम क्यों यूज करते हैं. सो दिस प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद दिस डेटा सेट इज टू प्रेडिक्ट द फॉरेस्ट कवर टाइप बेस्ड ऑन द गिवन फीचर्स. यानी हम उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, सॉइल टाइप, डिफरेंट हिल्स शेड एट डिफरेंट टाइम वो देने के बाद ये हमें बताएगा कि ये दिस फॉरेस्ट है. ओके, इट कुड बी दिस फॉरेस्ट. Now why we use this in machine learning? So this data set is commonly used for tasks such as classification यानी feature selection, algorithm, बैंक मार्किंग. ये कुछ मैंने रिसर्च किया था, आप लोग इनको पढ़ लेना. ठीक है, सो अभी के लिए मैं इनको इग्नोर करता हूँ. सो आगे बढ़ने से रिसर्च पढ़ने से पहले व्हाट इज कवर टाइप, सॉरी प्रोजेक्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कवर टाइप्स होता क्या है. सो द फॉरेस्ट कवर टाइप प्रेडिक्शन डेटा सेट कंसिस्ट ऑफ 7 कवर टाइप्स यानी 7 जंगलात यानी 7 फॉरेस्ट represented by the values 1 to 7 in the cover type column जो कि हमारा आउटपुट वेरिएबल है. अब इन हर एक का अपना एक नाम है. ठीक है, टोटल वी हैव 7 कैटेगरीज. दिस इज फर्स्ट जंगल, सेकंड फॉरेस्ट, दिस इज थर्ड फॉरेस्ट, दिस इज फोर्थ फॉरेस्ट, 7 फॉरेस्ट, 8 फॉरेस्ट, 9 फॉरेस्ट. अभी के लिए थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है लेकिन जस्ट स्टे विद मी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इस प्रोजेक्ट को आप एज अ अपने रेज्यूमे में यूज कर सकते हो. ओके, सो let me show you the null value. So first of all what I can df dot is null dot sum. पहले हमें null value चेक करने चाहिए. So we don't have any null value I think. Yeah, so जितने भी फीचर्स है किसी में भी null value नहीं है. मैं क्या करता हूँ, मैं सीधा ट्रेंड टेस्पलेट मारता हूँ. ठीक है, लेकिन ट्रेंड टेस्पलेट मारने से पहले व्हाट आई कैन डू, अगर मैं आप लोगों को कवर टाइप दिखाओ, दिस इज आवर कवर टाइप और इसके अंदर अगर मैं वैल्यू काउंट्स करो, ये हमारा आउटपुट वेरिएबल है जिसके अंदर हमारे पास
5 एक कैटेगरी है, 2 एक कैटेगरी है। एक्चुअली दिस आर फॉरेस्ट। ओके, मैं बताऊंगा कि 2 किस फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, 5 किस फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, 7 किस फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है एंड 6 किस फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। सो या अब मैं क्या करता हूँ, सीधा ट्रेंड टेस्ट प्लेट मारता हूँ। सो उसी के लिए मुझे पहले तो x यानी जो जितने भी इनपुट फीचर्स है वो निकालने होंगे। सो da डॉट ड्रॉप अपना कवर टाइप ऑन एक्सिस 1, यानी कॉलम वाइज में इसको ड्रॉप करता हूँ, यानी जितने भी इनपुट फीचर्स हैं वो मैं x को देना चाहता हूँ, और y को मैं देता हूँ अपना कवर टाइप। जस्ट लेट मी कॉपी दिस थिंग, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। उसके बाद मैं फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन से ट्रेंड टेस्ट प्लेट इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है, दिस इज आवर सिलेक्शन से मैं इंपोर्ट करता हूँ ट्रेंड टेस्ट प्लेट। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रेंड टेस्ट प्लेट लिख के यहाँ पे शिफ्ट एंड टैब प्रेस करता हूँ, और थोड़ा सा नीचे जाके यहाँ पे मुझे एक एग्जांपल मिल जाएगा। आई जस्ट कॉपी दैट एग्जांपल टू सेव आवर टाइम, क्योंकि मैं कई प्रोजेक्ट में ये ऑलरेडी कर चुका हूँ। जस्ट दिस थिंग, लेट मी कॉपी दिस थिंग, कंट्रोल C। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप मेरे चैनल में जाके मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स का जो प्लेलिस्ट है जिसमें 51 प्रोजेक्ट्स हैं उनको लाजमी देख लेना। अब यहाँ पे मैं साइज़ रखता हूँ 2। सो जितने भी इनपुट फीचर्स हैं उनका 80% डेटा एक्सटर्न में आ जाएगा एंड 20% डेटा एक्स टेस्ट में आ जाएगा, और जो हमारा कवर टाइप है आउटपुट वेरिएबल उसका 80% डेटा वाई ट्रेन में आ जाएगा एंड 20% डेटा वाई टेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, या लेट मी रन, दिस इज योर एक्स ट्रेन डॉट शेप एंड दिस इज योर एक्स टेस्ट डॉट शेप। ठीक है, ओके, देयर शुड बी लाइक दिस। ओके, इसी तरह आप वाई ट्रेन वाई टेस्ट को भी देख सकते हो। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लॉजिस्टिक रिग्रेशन देखता हूँ कि उसका रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट में हम ज़्यादातर फोकस वेब ऐप पे देंगे, स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी पे देंगे, पाइथन कोड पे देंगे। ठीक है, यहाँ पे मॉडल पर हम ज़्यादा फोकस नहीं देंगे। चलो, सो फ्रॉम sklearn से जो लीनियर मॉडल है उसे हम इंपोर्ट करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, दिस इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन विल बी इक्वल टू दिस लॉजिस्टिक रिग्रेशन, यानी मैं इसकी एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, और अब इसके अंदर में जो 80% डेटा है उससे मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन को ट्रेन करूँगा, यानी जो एक्स ट्रेन है इनपुट फीचर का 80% डेटा और आउटपुट वेरिएबल का जो वाई ट्रेन है 80% डेटा, इससे मैं ट्रेन करता हूँ। मैं काम करता हूँ, मैं इन सब को एक साथ करूँगा। ठीक है, ताकि मैं कॉपी पेस्ट भी करूँ। जस्ट लेट मी कट दिस थिंग फ्रॉम हियर एंड लेट मी पेस्ट इट राइट हियर। उसके बाद LG लॉजिस्टिक रिग्रेशन से मैं प्रेडिक्ट करता हूँ जो हमारे पास 20% डेटा है इनपुट का एक्स टेस्ट में, और पलट के जो भी प्रेडिक्शन होगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का उसको मैं वाई प्रेड में स्टोर करता हूँ। ठीक है, एक काम और करता हूँ यहाँ पे फ्रॉम sklearn डॉट linear जस्ट लेट मी शो यू फ्रॉम मैट्रिसेस इंपोर्ट करता हूँ मैं अपना एक्यूरेसी। ठीक है, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम का स्कोर देखने के लिए आपको एक्यूरेसी स्कोर इस्तेमाल करना होगा। ओके, तो लेट मी रन दिस सेल अगेन एंड लेट मी रन इट अगेन। ओके, यहाँ पे अगर मैं जस्ट लेट मी शो यू वाई प्रेड, दिस इज योर वाई प्रेड। सो ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन का प्रेडिक्शन है, कभी 4 है, कभी 1 है, कभी 5 है, कभी 3 है। ओके, वी विल सी। सो लेट्स चेक द एक्यूरेसी स्कोर। सो एक्यूरेसी स्कोर आपसे दो चीज़ें मांगता है, वाई ट्रू यानी वाई टेस्ट जो आपने बचा कर रखा है, जो मॉडल ने नहीं देखा है, और जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है, और वो है वाई प्रेड। ठीक है, सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज़ वेरी वीक, इसका रिज़ल्ट कुछ ख़ास अच्छा नहीं है, जो कि है 0.38। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और काम करता हूँ। जस्ट लेट मी कॉपी दिस, मैं एक और एल्गोरिथम का यूज़ करता हूँ राइट हियर। फ्रॉम sklearn डॉट ट्री से इंपोर्ट करता हूँ डिसीजन
इंपोर्ट डिसीजन ट्री क्लासीफायर, और इसको रन करने के बाद मैं डिसीजन ट्री क्लासीफायर का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। दिस इज़ द ऑब्जेक्ट, एंड उसके बाद ये पेस्ट करके अब इस पार्ट को मैं रिमूव करता हूँ बिकॉज वी डोंट नीड इट। LG के बजाय मैं जस्ट यूज़ करूँगा DTC एंड डिसीजन ट्री क्लासीफायर। सो यहाँ पे भी मुझे एक्यूरेसी डालना होगा। सो एक्यूरेसी अगेन y टेस्ट एंड y प्रेड। सो यह डिसीजन ट्री का कुछ अच्छा है, 0.80, दैट इज़ क्वाइट गुड। चलिए एक और चेक करते हैं। सो लेट मी कॉपी दिस अगेन। एक और है हमारे पास फ्रॉम SK लर्न डॉट। इंसेंबल टेक्निक के अंदर हमारे पास एक एल्गोरिथम होता है, इंपोर्ट करता हूँ मैं उसको, जो कि है रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर। सो दिस इज रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर विल बी इक्वल टू रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, यानी मैंने इसकी ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद पेस्ट किया सब कुछ। सो डिसीजन ट्री के बजाय होगा रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, और साथ ही साथ यहाँ पे भी डिसीजन ट्री के बजाय रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर होगा। सो इट्स टेकिंग टाइम, या रैंडम फॉरेस्ट इज क्वाइट गुड। सो हम इसी को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सो रैंडम फॉरेस्ट का जो रिजल्ट है, परफॉर्मेंस है, वो बहुत ही बढ़िया है। अभी के लिए अगर मैं डेटा के अंदर जाऊँ और आप लोगों को दिखाऊँ अपना कवर टाइप, और इसके अंदर मैं वैल्यू काउंट्स लगाता हूँ लाइक दिस, तो यहाँ पे देखूँ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कौन सा होता है, जिसमें आपके पास एक्चुअली दो कैटेगरीज होते हैं, 0 and 1, ट्रू फॉल्स, 1 2, ओके। लेकिन ये मल्टी क्लासिफिकेशन है, क्योंकि इसमें आपके पास 7 कैटेगरीज हैं। तो जब 2 से ज़्यादा कैटेगरीज हो उसे आप कहते हो मल्टी क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब मैं वेबसाइट यानी वेब ऐप में जाने से पहले क्या करता हूँ, जो यूज़र का इनपुट है वो यहाँ पे चेक करता हूँ कि हमारा जो रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर है वो उस पर प्रेडिक्ट भी करता है, अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट करता है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। उसके लिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, या वेरिएबल बनाने से पहले मैं DF के अंदर जाके उस पर iLog लगा के 10 रोज से कुछ निकालते हैं रैंडमली, वैल्यूज लाइक दिस। सो ये है सारे इनपुट फीचर्स लास्ट वाले को छोड़कर, ठीक है। ये मैं सारे के सारे कॉपी करता हूँ। दिस 5 इज आर कवर टाइप वैल्यू, यानी ये किसी फॉरेस्ट की वैल्यू है जो मैं आगे बताऊंगा। तो अगर ये इनपुट प्रेडिक्ट करता है 5 यूजिंग रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, तो इसका मतलब है हमारा मॉडल बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहा है। सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ यूज़र इनपुट के नाम से, और फिर मैं ये चीज़ यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। दिस इज़ आर यूज़र इनपुट। अभी के लिए हम ये समझते हैं कि ये हमारे यूज़र का इनपुट है, ठीक है। रन करने के बाद मैं क्या करता हूँ, अब इस यूज़र इनपुट को सबसे पहले आपको numpy एरे में कन्वर्ट करना होगा। सो मैं फीचर्स के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसके बाद numpy एरे के अंदर लिस्ट के अंदर मैं यूज़र इनपुट पास करता हूँ, ठीक है, लाइक दिस। अब मैं रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर का इस्तेमाल करके उस पर प्रेडिक्ट करता हूँ, किसके ऊपर, फीचर्स के ऊपर, और इसको मैं रिशेप करता हूँ। रिशेप क्यों, क्योंकि मुझे चाहिए दिस 5, और ये 5 हमारा लास्ट कॉलम है। लास्ट कॉलम यानी कवर टाइप। तो हम क्या करेंगे, एक सिंगल इंस्टेंस उठाएंगे, एक सिंगल इंस्टेंस लाइक दिस, सिंगल रो उठाओ, लेकिन किस कॉलम का, नेगेटिव इंडेक्सिंग करते हुए -1 यानी लास्ट कॉलम का, एंड रन। तो ये देखो 5 आ गया, इसका मतलब है बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। एक और देखते हैं, मैं DF के अंदर अगेन जाके iLog पे जाके इस बार 100 से उठा रहा हूँ और उनके वैल्यूज़ निकाल रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कवर टाइप 2 है, यानी फॉरेस्ट 2 है। सो अगर ये 2 प्रेडिक्ट करता है, इसका मतलब है कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। जस्ट लेट मी शो यू, दिस इज़ यूज़र इनपुट। सो पेस्ट इट, ये सारा का सारा कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। सो रन ऑल अगेन, एज यू कैन सी इट्स वर्किंग क्वाइट गुड, दैट इज़ ट्रू। सो हमारा मॉडल तैयार है। अब इस मॉडल को हम यहाँ से पिकल करते हैं, यानी हम इसको एक फाइल में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ता है पिकल, एंड पिकल के अंदर जाके आपको लगाना पड़ता है डंप,
और डम के अंदर आपको बताना पड़ता है अपना जो ट्रेन मॉडल है रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, और फिर आप इसको एक नाम देते हैं, यही सेम नाम देते हैं विद एक्सटेंशन PKL, और फिर आप यहाँ पे बाइनरी मोड देते हो। सो बाइनरी मोड विल बी इक्वल टू राइट बाइनरी मोड, और ये करने के बाद हम इसको पिकल करते हैं। सो अगर मैं अपने फोल्डर में जाऊँ, अब इस फोल्डर में बहुत कुछ है, अभी के लिए भूल जाओ। इस फोल्डर में एक चीज़ आ गया रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर डॉट PKL, दिस इज़ आर ट्रेन मॉडल। हम अब इसी को यूज़ करेंगे, इस कोड की ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स डू इट। सो मैंने PyCharm ओपन किया है, मैंने एक फोल्डर बनाया है 1.9 फॉरेस्ट कवर टाइप प्रेडिक्शन के नाम से, ठीक है। ये मैंने एक फोल्डर बनाया है, आप कोई भी फोल्डर बनाओ। इस फोल्डर के अंदर एक इन्वायरमेंट बनाओ, ठीक है, कोई भी इन्वायरमेंट बनाओ पाइथन का। अब इस फोल्डर के अंदर आपको सिर्फ एक चीज़ ले आना है, और वो है रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर डॉट PKL, जो हमने अभी पिकल किया। इस डेटा सेट की ज़रूरत नहीं है, आप ये लाए या ना लाए इसकी ज़रूरत नहीं है, और ना ही इस जुपिटर नोटबुक फाइल की ज़रूरत है। ये तो मैंने वैसे वही सेम फोल्डर ओपन किया है, सो यू डोंट नीड इट। लेकिन आपको ये 8 इमेजेस चाहिए, दिस इज़ आर इमेजेस, ये हम अपने वेब ऐप में यूज़ करेंगे। ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इन सारे के सारे इमेजेस को यहाँ पे ले आना, ठीक है। अब ये इमेजेस मुझे कहाँ से मिले हैं और मुझे कैसे पता चला कि ये इस फॉरेस्ट का इमेज है, तो इसके लिए आपको जाना होगा वापस अपने रिसर्च सेक्शन में। सो मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, अबाउट फॉरेस्ट। अब सबसे पहले जंगल का नाम है स्प्रूस फर। अब इस स्प्रूस फर की जो वैल्यू है वो है 1, ठीक है। वो जो कवर टाइप के अंदर 1 वैल्यू था वो स्प्रूस फर का था, ये जंगल का नेम है। आप डिटेल के साथ अगर इनको पढ़ सकते हो तो आप पढ़ लेना, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन ये जंगल कुछ इस तरह दिखाई देता है, दिस इज द जंगल, ओके, दिस इज द फॉरेस्ट स्प्रूस फर। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो जंगल है वो है लॉज पूल पाइन। इसकी जो कवर टाइप में वैल्यू है वो 2 है, इसको रट लेना, अभी से रट लो। वैसे मैं दिखा देने वाला हूँ, अभी वेब ऐप जब हम बनाएंगे वहाँ पे मैं दिखाऊंगा। इसके बारे में अगर पढ़ना है तो आप लोग पढ़ लेना, लेकिन ये जो लॉज पूल पाइन है वो कुछ इस तरह दिखाई देता है, ठीक है। इसी तरह 3rd नंबर पर हमारे पास जो वैल्यू था उस जंगल को हम कहते हैं पेंडरोसा पाइन। पेंडरोसा पाइन कुछ इस तरह दिखाई देता है, ठीक है, दिस इज पेंडरोसा पाइन। उसके बाद कॉटन वुड विलो, ये जंगल आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा। उसके बाद एस्पिन, ये येलो ट्री वाला एस्पिन होता है, ठीक है। डॉगलेस फर, दिस इज द डॉगलेस फर इमेज, एंड दिस इज द क्रोम होल्स इमेज, ओके। ये सारे के सारे जंगल्स है, फॉरेस्ट है। ये जो PDF मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, इसको आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। सो वापस आते हैं अपने PyCharm में। सो इस फोल्डर पर राइट क्लिक करें, न्यू पे जाएं, और पाइथन फाइल में app.py के नाम से कोई भी फाइल बनाएं। और इसको मैं अभी के लिए थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, लाइक दिस, ठीक है। अब आप लोगों का काम ये है कि आप लोगों को इंस्टॉल करना है, टर्मिनल में जाना है। इट्स टेकिंग टाइम, सो वेट करते हैं। आई डोंट नो व्हाई इट्स टेकिंग टाइम। यहाँ पे आपको लिखना है पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट। सो मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, आप लोग इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद इंस्टॉल करना numpy, ठीक है। उसके बाद इंस्टॉल करना अपना पेंडाज। ये इंस्टॉल करने के बाद आपको एक और लाइब्रेरी चाहिए, पिलो। आई थिंक ये बिल्ट इन आता है पाइथन के साथ, बट आई डोंट नो। अगर ये बिल्ट इन है तो ठीक है, अदरवाइज इसको भी इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि हमें इमेजेस को भी यहाँ पे ले आने हैं, ठीक है। सो उसके बाद आपको इंस्टॉल करना है scikit learn, ये लाइब्रेरी हमें चाहिए, ठीक है। सो ये करने के बाद एक काम और कर लेना, जो आपने मॉडल ट्रेन किया है जुपिटर नोटबुक में, वहाँ पे आप देख लेना कि आपके scikit learn लाइब्रेरी का जो वर्जन है वो कौन सा है। अगर वहाँ पे 2.3 वर्जन आपने यूज़ किया है, लेट्स से 2.3, तो आप यहाँ पे कुछ इस तरह इंस्टॉल करना ना, scikit learn विल बी इक्वल टू 2.3, क्योंकि हमारा जो मॉडल ट्रेन हो चुका है वो scikit learn 2.3 में है। वो कोई भी हो सकता है इन योर केस, आई एम जस्ट टेकिंग इट रैंडमली, लेकिन यहाँ पे आप 2.3 इंस्टॉल कर लेना अगर वहाँ पे 2.3 है, ठीक है। सो लेट्स इंपोर्ट streamlit एज st। उसके बाद इंपोर्ट करते हैं numpy एज np। उसके बाद इंपोर्ट करते हैं अपना pandas एज pd। उसके बाद इंपोर्ट करते हैं
पिकल, हमने मॉडल को भी यहाँ पे लोड करना है। उसके बाद इंपोर्ट करते हैं, अच्छा यहाँ पे एक और लाइब्रेरी आप लोगों को इंपोर्ट करना होगा, फ्रॉम PIL यानी पिल्लो, कैपिटल में लिखना, इंपोर्ट करना कैपिटल I वाला इमेज। ये क्लास है जो इमेज लोड करने के काम आता है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे कमेंट डालता हूँ, लोडिंग ट्रेंड मॉडल, और वो है अपना पिकल लाइब्रेरी की मदद से आपको जाना है लोड में, और इसके अंदर आपको लिखना है ओपन के अंदर आपको लिखना है रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर डॉट PKL, और इसके अंदर आपको बताना पड़ता है बाइनरी मोड। सो बाइनरी मोड क्या था, उस केस में था हमारे पास राइट बाइनरी मोड, लेकिन यहाँ पे हम रीड कर रहे हैं, सो रीड बाइनरी मोड होगा यहाँ पे, ठीक है। सो मॉडल लाने के बाद अब नेक्स्ट काम आपको करना है कि अब हम बनाते हैं वेब ऐप। अब समझो, बहुत इंटरेस्टिंग कोड आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कमेंट डालता हूँ, क्रिएटिंग वेब ऐप, ठीक है। सो सबसे पहले st.title, और इसके अंदर में टाइटल लिखता हूँ फॉरेस्ट कवर टाइप प्रेडिक्शन, ठीक है। सो अभी के लिए जस्ट लेट मी रन इट। आप रन किस तरह करोगे, आपको जाना है टर्मिनल में। टर्मिनल में जाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है, ये सब कुछ हटाने के बाद जस्ट लेट मी लाइक दिस, आपको यहाँ पे लिखना है स्ट्रीम लेट, उसके बाद रन, उसके बाद अपने ऐप का नाम, जो भी आपने ऐप को नाम दिया है वो .py, ठीक है, स्ट्रीमलेट रन ऐप .py एंड एंटर। तो ये आपको एक URL देगा, वो URL आपके वेब ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा और आपका वेब ऐप तैयार है। दिस इज़ द URL, और ये है आपका वेब ऐप। सो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। दिस इज फॉरेस्ट कवर टाइप प्रेडिक्शन, ये हमारा टाइटल है। लेट मी जूम इन अ बिट, ओके। सो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, ये तो हो गया टाइटल। अब यहाँ पे जो बैकग्राउंड में मैंने इमेज दिखाया था वो यहाँ पे लाते हैं। सो देखना, मेरे पास एक इमेज है, दिस इमेज, मैं अपने वेब ऐप में ये इमेज डालूंगा, ठीक है। ये ऑप्शनल है, आप डालें या ना डालें ऑप्शनल है। सो इमेज आप डायरेक्टली स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी की मदद से नहीं डाल सकती, आपको एक वेरिएबल बनाना होगा इमेज, उसके बाद जो कैपिटल I वाला इमेज था पिलो लाइब्रेरी से, उस क्लास का यूज़ करके उसके अंदर आपको ओपन करना पड़ता है इमेज। अब इमेज का पाथ दो, और वो है मेरा image.png, दिस इज द इमेज, ये image.png यानी ये वाला इमेज, ठीक है। सो मैंने क्या किया, मैंने इमेज को लोड किया, यानी जस्ट ओपन किया। अब मेरे पास एक इमेज है इस वेरिएबल में। अब मैं स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी के अंदर जाके इसके अंदर एक फंक्शन होता है इमेज, आई थिंक वेरिएबल या फंक्शन, आई डोंट नो, बट ये हम यूज़ करते हैं नॉर्मली। सो इसके अंदर अब मैं पास करूँगा ये इमेज, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप कैप्शन भी डाल सकते हो, आप कुछ भी डालो, दिस इज़ माई इमेज लेट्स से, और यहाँ पे आपको एक पैरामीटर पास करना होगा, यूज़ कॉलम विड्थ, इसको आप ट्रू रखो। इसका मतलब ये है कि जितना विड्थ आपके इमेज का होगा उतना ही वेबसाइट में स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी इस इमेज को अपने ही विड्थ के अकॉर्डिंग सेट करेगा। सो अगर मैं वापस अपने स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी के वेब ऐप में जाऊँ और इसको रिलोड करो, ये आ गया अपना इमेज। अब इस इमेज के नीचे हम एक टेक्स्ट, इनपुट टेक्स्ट डालेंगे जहाँ पे हम यूज़र से इनपुट लेंगे। सो देखना, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, या वेरिएबल से पहले मैं टेक्स्ट इनपुट के नाम से एक फंक्शन है वो यूज़ करूँगा, और इसके अंदर मैं कहता हूँ कि इंटर ऑल कवर टाइप फीचर्स, ठीक है, इट शुड बी इंटर लाइक दिस, और पलट के जो भी आएगा उसको मैं कहता हूँ कि ये हमारे यूज़र का इनपुट है जो हमने वहाँ पे किया था जुपिटर नोटबुक में, यूज़र इनपुट लाइक दिस। अब देखना, ये यूज़र इनपुट है। ये आने के बाद अब सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि यूज़र ने कुछ डाला भी है या नहीं। आप चेक कर भी सकते हो या नहीं, लेकिन चेक करना ज़रूरी है। सो मैं क्या करूंगा, मैं एक इफ स्टेटमेंट डालूंगा, उसके बाद यूज़र इनपुट, इफ़ यूज़र इनपुट अगर ऐसा है तो जैसे हमने पिछली बार किया था सेम उसी तरह हम यूज़र इनपुट को numpy एरे में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो व्हाट आई कैन डू, इसको मैं सबसे पहले कॉमा से सेपरेट करूंगा, क्योंकि हमारे पास एक इनपुट फील्ड है और उसमें बहुत सारे फीचर्स हम एक साथ डाल रहे। देख लेना, मैं इसको आसान बनाता हूँ।
सो यूज़र इनपुट विल बी इक्वल टू यूज़र इनपुट डॉट स्प्लिट करता हूँ मैं इसको कामा से लाइक दिस। उसके बाद अब इस यूज़र के इनपुट को मैं numpy एरे में कन्वर्ट करके इसको एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ फीचर्स। सो np डॉट एरे जो हमने पिछली बार किया था एरे, और लिस्ट के अंदर में अपना यूज़र के इनपुट को पास करता हूँ और इसकी डेटा टाइप में रखता हूँ np डॉट फ्लोट। ठीक है, फ्लोट 64 रखो, फ्लोट 32 रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो हमने कुछ नहीं किया, अभी तक हमने कुछ खास नहीं किया है। हमने जस्ट टाइटल बनाया, एक इमेज ले आया, उस इमेज को डाला स्टिमुलेट लाइब्रेरी की मदद से, यूज़र से इनपुट लिया, एक वेरिएबल में स्टोर किया, उसको चेक किया कि यूज़र ने इनपुट दिया भी है या नहीं। अब उस यूज़र के इनपुट को हमने कामा से सेपरेट किया क्योंकि वहाँ पे कामा होता है, अगर आप ये नहीं डालते तो ये आपको एरर देगा। ठीक है, सो चूँकि हमने इसको एक numpy एरे में कन्वर्ट करना होता है, ये मैं कई प्रोजेक्ट में बता चुका हूँ बड़ी डिटेल के साथ। उसके लिए आप np डॉट एरे एक लिस्ट के अंदर यूज़र के इनपुट को पास करते हो और पलट के इसको हमने फीचर्स के नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसमें स्टोर किया और इसकी डेटा टाइप हमने फ्लोट रखा। ठीक है, अब देखना ये करने के बाद हम इस पर प्रेडिक्शन करेंगे। तो हमारे पास एक ट्रेंड मॉडल है, सो जस्ट लाइक दिस, हमारे पास एक ट्रेन मॉडल है रैंडम फॉरेस्ट। व्हाट वाज रैंडम फॉरेस्ट, ये क्यों नहीं आ रहा है? जस्ट लेट मी चेक। ओके, मैंने इसको एक वेरिएबल में स्टोर भी करना था। सो दिस शुड बी रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर लाइक दिस। ये जो ट्रेंड मॉडल है, अब इन यूज़र के फीचर्स पे हम प्रेडिक्शन करेंगे। सो रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर डॉट प्रेडिक्ट करो अपना फीचर्स, लेकिन हमें चाहिए कवर टाइप यानी जंगल यानी फॉरेस्ट। तो हमें रिशेप करना होगा पिछली बार की तरह, सिंगल रो लेकिन लास्ट कॉलम का वैल्यू, सिंगल रो के अंदर नॉट तमाम वैल्यूज, वी आर गेटिंग जस्ट दिस वैल्यू, वी आर नॉट गेटिंग दिस वैल्यू। अगर ये इनपुट आप देते हो बट ये इनपुट देने के बाद वी आर इंटरेस्टेड इन दिस वैल्यू। सो दिस इज द लास्ट कॉलम, दिस इज अ सिंगल रो एंड दिस इज द लास्ट कॉलम वैल्यू। इसलिए हम यहाँ पे रिशेप के अंदर सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम बट लास्ट वन, नेगेटिव इंडेक्सिंग राइट साइड से, और पलट के जो भी आएगा उसको मैं कहता हूँ कि इसको प्रेडिक्शन में स्टोर करो। ठीक है, चले जी बढ़िया। एक हम और करते हैं कि प्रेडिक्शन करने के बाद हमारे पास एक सिंगल वैल्यू होता है। सो यहाँ पे डेटा टाइप फ्लोट में है तो हम उसको अगेन इंट में कन्वर्ट करते हैं। देखना ये आसान कर देता हूँ मैं, इंट प्रेडिक्शन। जो अब प्रेडिक्शन के पास क्या होगा खुद सोचो, अंदाज़ा लगाओ। इस प्रेडिक्शन के पास अगर हम ये इनपुट देते हैं तो जो कवर टाइप कॉलम था उसका 2 होगा। ठीक है, और ये इंटीजर में है तो इसलिए मुझे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। और इसको मैं अगेन प्रेडिक्शन कहता हूँ। ठीक है, लाइक दिस। ओके, सो हमने यूज़र के इनपुट को स्प्लिट किया, हमने numpy एरे में कन्वर्ट किया, हमने प्रेडिक्शन भी मारा, हमारा प्रेडिक्शन तैयार है। अब इसके पास या तो होगा, चलिए दिखा देता हूँ। सो st.write, आप जब कोई चीज़ डिस्प्ले करते हो वेब ऐप के अंदर यूजिंग स्टिमुलेट लाइब्रेरी तो आप st.write का इस्तेमाल करते हो प्रेडिक्शन। ठीक है, सो अभी के लिए मैं जाके ये सारा का सारा चीज़ कॉपी करता हूँ यहाँ से एंड जस्ट लाइक दिस कॉपी। अगर इसने 2 दिया तो बढ़िया, फिर उसके बाद हम 2 की जगह पे ही वो फॉरेस्ट का जो नाम होगा वो डिस्प्ले करके देंगे और एक इमेज भी। सो मैं जाता हूँ यहाँ पे राइट हियर, सो लेट मी रिलोड, इट्स अगेन टेकिंग टाइम बट यहाँ पे एक, हाँ ये है हमारा सर्च बार। अगर मैं इसमें पेस्ट करूँ और एंटर करूँ तो ये देखो यहाँ पे बहुत छोटा छोटा 2 आ रहा है। ठीक है, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू डिस्प्ले दिस 2 हियर, वी आर इंटरेस्टेड टू डिस्प्ले दिस 2 फॉरेस्ट नेम। इस 2 के वैल्यू पे जो भी फॉरेस्ट का नेम है वो डिस्प्ले करें और जो उस फॉरेस्ट का इमेज है वो डिस्प्ले करें। ठीक है, सो लेट्स डू इट। उसके लिए थोड़ा सा जुगाड़ हमने लगाना होगा। ठीक है, जुगाड़ इन द सेंस, अब इस चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं एक डिक्शनरी बना रहा हूँ। इस डिक्शनरी की बड़ी ज़रूरत है आपको फ्यूचर में भी, इस प्रोजेक्ट में भी। देखना, कवर इमेज
के नाम से मैं एक डिक्शनरी बना रहा हूँ, डिक्ट विल बी इक्वल टू लाइक दिस। अब इस डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने पाइथन में डिक्शनरी पढ़े हैं तो एक्चुअली डिक्शनरी कुछ इस तरह होता है। अब इस डिक्शनरी अगर मैं सिंगल डिक्शनरी बनाऊँ तो एक इसके अंदर एक वैल्यू होगा, एक की होगा, लेट्स से नेम हेलो, ये आपका डिक्शनरी है, ठीक है। ये की है, ये वैल्यू है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं जो की बना रहा हूँ, दिस इज माय की, और इसकी जो वैल्यू है उसमें पूरा का पूरा डिक्शनरी डाल रहा हूँ, यानी डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी। अब इस डिक्शनरी के अंदर मैं अगेन एक की डालूंगा नेम के नाम से और उसका एक वैल्यू डालूंगा। अब देखना 1 मैंने बताया था, जो हमने PDF बनाया था उधर मैंने आपको बताया 1 के ऊपर कौन सा था, उसके ऊपर था स्प्रूस कैपिटल F वाला फर, ठीक है। और इसका एक इमेज है, मेरे पास एक इमेज पड़ा है, image 1.png। दिस इज द इमेज दैट बिलोंग्स टू स्प्रूस फर फॉरेस्ट, ओके। जो वन कैटेगरी था कवर टाइप कॉलम के अंदर, उसका जो नेम है जंगल का वो ये नेम है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता है कि ये इस जंगल का नाम है। तो मैंने रिसर्च किया था, मैंने इस डेटा सेट और जितने भी जंगल्स हैं, ये 7 जंगल्स, इन पे रिसर्च किया और मैंने फाइंड आउट किया कि इस डेटा सेट के अंदर किन किन जंगलात को इन लोगों ने 1 वैल्यू दिया है, किसी को 2 वैल्यू दिया है। तो उस बेस पे मैंने ये निकाले, ठीक है। बट आप लोगों को ये मिल जाएगा PDF में, आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद मुझे इस जंगल का एक इमेज चाहिए, तो मैं अगेन एक की डालूंगा, ठीक है, और उसको मैं नाम देता हूँ इमेज। और अब इस की के वैल्यू में मैं डालूंगा दिस इमेज, सो इमेज _1.png। अब देखना बहुत ही कमाल का कोड बताने वाला हूँ। दिस इज द इमेज, ओके, और मेरा ये जंगल है जिसका ये नेम की है, ये वैल्यू है, अगेन की और ये वैल्यू। यानी मैंने जो कवर टाइप कॉलम के अंदर 1 कैटेगरी वाला वैल्यू है उसका जंगल निकाला और उस जंगल का इमेज भी निकाला। अब मैं 7 इसी तरह बनाऊंगा। सो 2 दूसरा हमारे पास है नेम अगेन जैसे, तो मैं जल्दी जल्दी ये कर लेता हूँ फिर आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। सो ये मैंने डिक्शनरी बना लिया, ठीक है। 1 कैटेगरी वाला जंगल और उसका इमेज, 2nd कैटेगरी वाला जंगल दैट इज लॉज पूल पाइन इमेज। अब ये मैंने रैंडमली नहीं डाले हैं, ये मैंने रिसर्च किया हुआ है कि 2 पे जो पड़ा जंगल है उसका क्या नाम है और उसका कौन सा इमेज है, ठीक है। एंड ऑल 7 कैटेगरीज। अब देखना मेरे पास एक प्रेडिक्शन है जिसके पास एक वैल्यू है, ये वो जो कवर टाइप कॉलम था वहां से आ रहा है। इट कुड बी 1, आई डोंट नो, ये 1 भी हो सकता है, ये 4 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, इस कवर टाइप डिक्शनरी के अंदर भेजूंगा इस वैल्यू को, क्योंकि वहां पे ये की अगर इसके पास 1 है तो वो इसको निकालेगा, इस डिक्शनरी को निकालेगा, ठीक है। अगर इस प्रेडिक्शन के पास 3 है तो वो इस डिक्शनरी को निकालेगा, ठीक है। चलिए ये कर लेते हैं। सो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे नीचे आके देखना अभी तक हमने क्या किया, मैं पहले ये बता देता हूँ। हमने अपने मॉडल से प्रेडिक्ट किया। अब इसके पास जो 7 कैटेगरीज है उनमें से कोई भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू यूजर इनपुट, ठीक है। अब हम ये जो इनपुट है ये इस डिक्शनरी के अंदर भेजेंगे और उस कॉलम का हम नेम, इफ इट इज 1 तो फिर ये नेम और इमेज हम निकालेंगे, ठीक है। सो लेट्स डू इट। इसके लिए आपको जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी का नाम है कवर टाइप डिक्शनरी, उससे हम गेट करते हैं जो प्रेडिक्शन है वो, ठीक है। और इसको हम कहते हैं कवर टाइप इन्फो, आई थिंक ये बेटर रहेगा। अब इस कवर टाइप इन्फो के पास एक डिक्शनरी होगा, इस डिक्शनरी के अंदर एट अ टाइम एक डिक्शनरी होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेडिक्शन, ठीक है। जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है अगर इसके पास 2 है तो यहाँ पे ये 2 होगा। ये 2 हम कैसे निकाल रहे हैं, ये हम जो कवर टाइप डिक्शनरी है उसके अंदर गेट की मदद से निकाल रहे हैं 2। अगर प्रेडिक्शन के पास 2 है तो ये 2 डिक्शनरी, अब ये सारा इन्फो इसके पास है। अब देखना लॉजिक, मैं एक चेक लगाऊंगा, इफ दिस कवर टाइप इन्फो इज नॉट नन, जस्ट चेक कर रहा हूँ, ये भी ऑप्शनल है। अगर ये खाली नहीं है
तो इस डिक्शनरी से मैं दो चीज़ें निकालूंगा। लेट से अभी के लिए हम समझते हैं कि जो प्रेडिक्शन है उसके पास ट्रू है, तो जाहिर सी बात है ये ट्रू हमने इस डिक्शनरी के अंदर भेजा तो ये इंटायर डिक्शनरी हमें निकाल के देगा। ठीक है, अब इस कवर टाइप ये इस किसके पास आ गया फाइनली, ये ट्रू वाला डिक्शनरी ये कवर टाइप इन्फो के पास आ गया। तो मैं इसे दो चीज़ें निकालूंगा, दिस नेम, इस नेम का ये दिस वन, ये लॉज पूल निकालूंगा और इसका इमेज निकालूंगा। और मैं कैसे निकालूंगा देखना, एक फॉरेस्ट नेम के नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूं, उसके बाद जो कवर टाइप है इन्फो है उसके अंदर जाके उसका नेम निकाल रहा हूं। ठीक है, यानी मैं इस डिक्शनरी के अंदर घुसा और इसका ये नेम निकाल के इस वेरिएबल में स्टोर किया। अब अगेन इस डिक्शनरी में घुसूंगा और ये इमेज निकालूंगा। ठीक है, सो फॉरेस्ट इमेज, कुछ भी आप नाम दे सकते हो। अगेन कवर टाइप इन्फो के अंदर जाके मैं निकालूंगा क्या, इमेज। ठीक है, सो फाइनली मैंने जो प्रेडिक्शन था मॉडल का प्रेडिक्शन 2 के बजाय अब मैं दिखा सकता हूं, मैं इस काबिल हूं कि मैं दिखा सकता हूं उस 2 डिक्शनरी पे पड़ा फॉरेस्ट का नेम और उस 2 डिक्शनरी पे पड़ा फॉरेस्ट का इमेज। ये जरूरी नहीं है कि 2 हो, वो तो मॉडल पर डिपेंड करता है कि मॉडल जो प्रेडिक्ट करेगा वो होगा। ठीक है, अब दिखाते हैं हम यूजर को। देखना मेरे पास दो चीजें हैं, एक है नेम, एक है इमेज। तो मैं अगल बगल में दिखाऊंगा। ठीक है, यहां पे दिखाऊंगा। मैं चाहता हूं कि यहां पे एक कॉलम हो, राइट हियर, जस्ट लेट मी शो यू। ओके, यहां पे एक इसी तरह कॉलम हो, उसमें जस्ट फॉरेस्ट का नेम और बिल्कुल इसके बगल में राइट साइड पे एक और कॉलम हो और उसमें इस फॉरेस्ट का इमेज दिखाओ। ठीक है, तो यही मेरा गोल है। तो स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी आपको एक मौका फराहम करता है कि आप कुछ कॉलम बनाओ, वेरिएबल बनाओ या कॉलम बनाओ। मैं 2 कॉलम्स बना रहा हूँ स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी के अंदर जाके कॉलम्स, और फिर यहाँ पे बताता हूँ 2 कि आप मुझे 2 कॉलम दे दो, एक इसको एक इसको। ठीक है, अब देखना उसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ता है विद कॉलम 1। ठीक है, आपको क्या करना है, अब इस कॉलम के अंदर आप कुछ भी दिखा सकते हो। ठीक है, आपने एक कॉलम बनाया, दिस इज जस्ट आई हैव क्रिएटेड अ कॉलम। ओके, अब इस कॉलम के अंदर मैं कुछ भी दिखा सकता हूं। सो मैं चाहता हूं कि इस कॉलम के अंदर मैं फॉरेस्ट का जो नेम है वो दिखाऊं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, st.write लिखता हूं और इसके अंदर पहले नेम के बजाय मैं बताता हूं दिस इज प्रेडिक्टेड कवर टाइप, या फॉरेस्ट भी आप कह सकते हो। और इसके बिल्कुल नीचे मैं दिखाता हूँ राइट अपना दिस नेम। तो मैं पाइथन की फॉर्मेट का इस्तेमाल करके फॉरेस्ट नेम, ठीक है, ये दिखा रहा हूँ। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं इसको रन करूँ, जस्ट लेट मी कॉपी ऑल दिस, let me cut and reload. It's taking time. रिलोड करने के बाद मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ और यहाँ पे सारे इनपुट पेस्ट करके नॉट इनफ वैल्यूज टू अनपैक एक्सपेक्टेड टू गॉट 1। अच्छा, ये एरर इसलिए आया क्योंकि हमारे पास 2 कॉलम हैं। सो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ विद कॉलम 2, और इसके अंदर थोड़ा सा ट्रिक हमने लगाना है, लेकिन इससे पहले मैं HTML आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो फॉरेस्ट नेम है, व्हाट आई कैन डू, या मैं कर ही लेता हूँ। ठीक है, सो कॉलम 2 के अंदर अब देखना, इस कॉलम 2 में मेरा क्या कौन सा गोल है, मेरा गोल है कि मैं फॉरेस्ट इमेज दिखाऊँ। ठीक है, फॉरेस्ट इमेज। तो भैया पहले इमेज को ओपन करो और उसके लिए आपके पास है इमेज क्लास, जो बिल्कुल ऊपर हमने इंपोर्ट किया हुआ है, राइट हियर दिस पिलो वाला। ठीक है, अब डायरेक्टली डिक्शनरी के अंदर नहीं घुस सकते। सो मैं क्या करता हूँ, इस कॉलम 2 के अंदर जाके मैं ओपन करता हूँ अपना फॉरेस्ट इमेज, और इसको मैं फाइनल इमेज के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ। फाइनल इमेज के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसमें स्टोर किया। ठीक है, ओके, अब मैं दिखा सकता हूँ बड़े आसानी के साथ इस फाइनल इमेज को यूजिंग स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी, streamlet.write, और इसके अंदर में फाइनल
इमेज, ओके, नॉट राइट, इट शुड बी इमेज, ठीक है। और यहाँ पे अगेन आप कैप्शन भी दे सकते हो। सो कैप्शन में हम टाइटल ही देते हैं जो हमारा था, या आप कुछ भी दे सकते हो, लाइक फॉरेस्ट इमेज नेम, जो नेम वो देते हैं। एंड अगेन यूज़ कॉलम विड्थ, आप तो रख सकते हो, जितना इमेज होगा उतना विड्थ या लें, ठीक है। ओके, सो लेट्स रिलोड दिस थिंग। एंड लेट मी पेस्ट, यहाँ पे कुछ तो पंगा आ रहा है। जस्ट लेट मी चेक, नॉट इनफ वैल्यूज टू अनपैक, एक्सपेक्टेड टू गॉट वन। अच्छा, एरर हमारे कॉलम्स में है, ठीक है। ओके, एरर इज राइट हियर। मैंने कौन सा गलती किया है, जस्ट लेट मी चेक। ओके, सो मुझे यहाँ पे कुछ इस तरह बताना होगा, ओके, 2/3, ठीक है। यानी एक्चुअली मैं बता रहा हूँ 2 rows and 3 columns, ठीक है, बट यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ 2 columns को। सो जस्ट लेट मी चेक कि काम भी किया इसने या नहीं। सो लेट मी पेस्ट एंड एंटर। ओके, इट्स वर्किंग क्वाइट गुड, ठीक है, बढ़िया। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको खूबसूरत बनाऊँ यूजिंग HTML एंड CSS। चलिए इसको भी कर लेते हैं। सो देखना, ये st.write लाइन जो है, राइट जो है, इसके अंदर आप HTML का इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे? h1 ओपन h1 टैग एंड क्लोज h1 टैग, ठीक है। और लेकिन इसके लिए आपको एक और चीज़ बताना पड़ता है, अनसेफ अलाउ HTML विल बी इक्वल टू ट्रू, यानी मैं इस लाइन में HTML का यूज़ कर रहा हूँ। और साथ ही अब इसके अंदर मैं स्टाइल का इस्तेमाल करके, यानी CSS का इस्तेमाल करके मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फ़ॉन्ट साइज़ रख सकता हूँ 50 पिक्सल, और मैं फ़ॉन्ट वेट रख सकता हूँ 10 पिक्सल, सॉरी बोल्ड, ठीक है, लाइक दिस। जस्ट लेट मी शो यू, ओके, लेट मी जूम आउट अ बिट सो यू कुड सी लाइक दिस। चलिए इसको अगेन रन करते हैं। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ और इनपुट उठाता हूँ। मैं 300 पे देखता हूँ, रैंडमली उठा रहा हूँ। ये तो वही अगेन 2 है, मैं कुछ 500 पे देखता हूँ, अगेन 2 है, ओके, गुड लक। 555 अगेन 2 है, 100 पे देखते हैं, ओ माय गॉड, 10 पे देखते हैं, हाँ ये चेंज हो गया। सो जस्ट लेट मी कॉपी। अब देखना ये 5 प्रेडिक्ट करेगा, इस 5 पे फोकस दो। हम जा रहे अपने वेब ऐप में और इसको रिलोड कर रहे हैं, और रिलोड करने के बाद ये इनपुट हमने दिया, तो ये है एस्पिन, ठीक है। चले इसको देखते हैं, ये है आपका आउटपुट। और साथ में अगर देखा जाए तो हमने जो HTML CSS का यूज़ किया, तो अब ये टाइटल बड़ा हो गया। तो अगर मैं डिक्शनरी में जाऊँ 5 पे कौन सा पड़ा है, 5 पे पड़ा है दिस इज़ एस्पिन एंड दिस इज़ द इमेज, ओके, इट्स वर्किंग क्वाइट गुड। एक और दिखा देता हूँ, मैं अगर 212 पे देखो, लाइक हाँ ये कौन सा जंगल है, ये 1 वाला, ये देखते हैं, ये आई थिंक फर्स्ट वाला डिक्शनरी उठाएगा। अब यहाँ पे आप न्यू इनपुट भी उठा सकते हो। अगर आप रिसर्च करके किसी भी जंगल के ये तमाम इनपुट फीचर, उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उसका हील शेड जो मैंने बताया था वो निकाल सकते हो, तो आप न्यू डेटा पे भी इसको चेक कर सकते हो। अदरवाइज इट्स वर्किंग क्वाइट गुड, ठीक है। जस्ट लेट मी पेस्ट एंड रन। सो ये आ गया अपना पहला डिक्शनरी वाला जंगल। सो ये था प्रोजेक्ट। सो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोजेक्ट से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कोई भी डाउट हो प्लीज़ 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 आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर आपके जहन में, आपके दिमाग में कोई भी आइडिया है, कोई भी प्रोजेक्ट, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आपको चाहिए, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। मैं आप लोगों के लिए काम करके बनाऊंगा एंड टू एंड प्रोजेक्ट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।